Hello children. Today we are going to do 8th class 8th chapter, that is cell. Structure and function of a cell. We will study the cell under two heads, that is structure and function. That is cell कैसा दिखता है, that is the structure, and function what are the work it does, that is उसका काम क्या है, वो क्या क्या काम करता है, that will be in the functioning of cell. So let's start the chapter, that is cell. Now children, we know कि around us all the time we are seeing lot of things around us. Some things are living and some are non-living. That is, this blackboard is non-living, this pen is non-living, but I who is speaking with you is a living person, isn't it? So, and the room I am in, which is also a non-living thing. Children, this room is built up with the smallest, what is the smallest unit? ये room को बनाने के लिए जो सबसे छोटी unit use की गई होगी वो must be a brick. Brick with this house by joining small bricks, and this room was made. Same way children, a human body or a plant or an animal, whatever, a living organism, may be a unicellular or a multicellular. एक सेल का ऑर्गेनिज्म है तभी भी उसमें सेल है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तभी भी उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो चिल्ड्रन, व्हाट आर दिस सेल्स? व्हाट आर दिस सेल्स? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर कोई लिविंग है तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होता है. Now children, we will study about how was the cell discovered. सेल कैसे डिस्कवर किया गया, डिस्कवरी ऑफ द सेल कैसा हुआ. चिल्ड्रन, रॉबर्ट हुक वॉज अ साइंटिस्ट. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जो चिल्ड्रन दैट टाइम माइक्रोस्कोप, कैन यू सी a photo of a microscope is there on the screen children, you can see. Without the discovery of microscope, it was not possible to see the cell. सेल को हम जो छोटी सेल है उसको हम without the help of microscope नहीं देख सकते हैं. So once it was in year 1665, what happened children? Robert Hooke was observing the cells. He was not actually, he was observing cell. He took a piece of cork. अब cork क्या होता है? Now what is this cork children? That is the bark of a tree. What is the cork? A bark of a tree. उनने एक बार्क ऑफ अ ट्री को एक स्लाइस काटा और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख रहे थे. सी चिल्ड्रन, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? You can see it on your screen at present. It is there on the screen. This is compound microscope. एक दिन इन्हीं माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइस मतलब एक पतली स्लाइस, एक कॉर्क का काटे, मीन्स बार्क ऑफ अ ट्री का काटा, एंड ही वॉज ऑब्जर्विंग इट. He saw a honeycomb-like structure. Children, do you know what is a honeycomb-like structure? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उनको honeycomb के जैसे मधुमक्खी का कोम्ब होता है उस तरीके का कोई स्ट्रक्चर उनको उसमें दिखाई दिया. He called this structure as a cell. He coined them as a cell. उनको honeycomb जैसे बहुत सारे छोटे छोटे rooms दिखाई दिए, तो he called them, उनको small room भी कहते हैं. In Latin we call it as small rooms, and Robert Hooke coined them as a cell क्योंकि वो उसको छोटे छोटे rooms के जैसे दिखाई दिया. honeycomb में जैसा छोटे छोटे घर होते हैं, छोटी छोटी एक एक rooms होती है, वैसे room के जैसे दिखाई दिया. So Robert Hooke named it as a cell, or you can call it as small room, that is in Latin. Okay, so children, सेल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया इसको in year 1665, and I told you how he discovered. It was first discovered in the cork, that is bark of the tree. He noticed the compartments in the cork. उसने कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जैसे मैंने ऐसे बताया, same kind of compartments he saw on this comb. These compartments appeared honeycomb like, also called as small room in Latin. ये honeycomb के जैसे दिखाई दे रहा था, तो इसको उसने नाम सेल रख दिया. सेल को मीन्स छोटे, लैटिन के टर्म में we call it as small room. Now children, one more scientist, Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek. Children, सेल तो इनने डिस्कवर किया, but without the help of, I told you, without the help of microscope it was not possible, because cells are very small. Again, very small organism, that is बैक्टीरिया हो चाहे प्रोटोजोआ हो. प्रोटोजोआ चिल्ड्रन, बैक्टीरिया हमको पता है जिससे हमको बीमारियां होती है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस we get, they are very small. So Anton van Leeuwenhoek found two things, two very small organisms he noticed, that is bacteria and protozoa. Children, this I am telling you only for your own extra knowledge.
Okay, now children, see, the discovery of cell would not have been possible if not advancement of microscope. अगर माइक्रोस्कोप नहीं होता तो सेल का जो एडवांसमेंट है, जो डेवलपमेंट है, जो पूरा स्ट्रक्चर हमको कभी भी नहीं दिखाई देता, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन नेचर एंड यू कांट सी विद द हेल्प एक्सेप्ट द माइक्रोस्कोप. Now children, I'll tell you some examples which you can see with your naked eyes. That is, अंडा देखा है आपने, अंडा, egg. Egg cell is a single cell which can be viewed with the help of naked eyes. In a human body, एक human body में सबसे longest cell जो होता है 3 feet long, that is nerve cell होता है, जिसको we call it as neurons. Also, nerve cell का नाम neuron है. This year we'll study nerve cell, neurons, everything we'll study this year in 8th standard. But now you remember जो nerve cell है आपके body में, that is the longest cell in your body and it is 3 feet in length. Myoplasm gentium is the smallest unicellular organism. सबसे छोटा unicellular organism जो है उसका नाम है myoplasm gentium. Children, it has the capacity, एक unicellular मतलब एक सेल का बना हुआ ये organism है और ये खुद में reproduce करने की भी क्षमता रखता है. Okay, so now I told you the discovery of the cell, who discovered the cell, how was the cell discovered. We saw the types of the cell कि बड़े cell भी बिना without the help of microscope also you can see, that is the egg cell, and with the help of microscope also you can see these cells. And I told you the longest cell in your body is the nerve cell. Now children, what is cell? अभी हम इतना cell बोल रहे हैं. Now what is the cell children? Cell is, children, it is the cell is the basic structural, functional and biological unit of any लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म को आप पहचानते हो, आप जानते हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो फंक्शन है. चिल्ड्रन, हर एक सेल जो है साथ में आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. कुछ सेल साथ में आए तो आपके बॉडी में डाइजेशन का काम कर रहे हैं, कुछ सेल साथ में आए तो आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन, देयर फंक्शनिंग इज डिफरेंट, मीन्स व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स दे कम टुगेदर दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. And structure, children, naturally you can see an elephant so large, human being, they are totally different, and a unicellular organism, that is amoeba, paramecium. एक unicellular organism को भी आप देख लीजिए, सभी cells के बने हैं, but they all are structurally different. Children, क्या मैं एक कुत्ते को एक elephant कह सकती हूँ क्या? नहीं. But the dog is also made up of a cell and an elephant is also made up of cell. But children, I can identify them because they are structurally different. Different structures के हैं. Children, ये तो outward structure देख के हुआ. Excuse me. But children, when we see the small cell, a unicellular organism also, all the cells have their different shapes and sizes. कोई सेल जो होता है वो इलोंगेटेड होगा, कोई सेल जो होगा वो ओवल होगा, कोई अपना शेप ऑफ द साइज शेप चेंज करता रहेगा, कोई स्लीपर के शेप का होगा. वी कैन सी अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, वी कैन सी सेल्स में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, एज आई टोल्ड यू, दिस रूम का बिल्डिंग यूनिट क्या है? ब्रिक है. सेम वे आवर, इट इज नॉट ओनली आवर, I'm counting all the living organism in our में मैं human beings, plants, animals सबको गिन रही हूँ. And we are also, हमारा जो सबसे छोटा इकाई है, जो सबसे छोटी यूनिट है, that is what children? Cell. Again we'll say the definition of cell, children. What is cell? The cell is the structural, functional and biological unit of any known living organism. जो आप organism को पहचानते हो, it is a living, and so that you know कि that living organism is made up of cell. अगर कोई organism को आप नहीं known करते हो, they are aliens or something different, then we can't say कि they are made up of. Children, Robert, H-O-O-K-E, teachers, children, make it E and take the screenshot of this blackboard. As what I have explained you can get everything on this blackboard. Children, please do this correction of E over here. Children, at present you can see on the screen, that is, one is the brick wall. I told you it is the unit
smallest unit from which a room is made, and another you can see onion peel, children. Many small cells you can see. So these two are the smallest unit of an organism, that is onion peel. और आपको और दूसरा जो दिख रहा है that is the एक दीवार दिख रहा है जिसमें स्मॉल ब्रिक से पूरा एक दीवार या एक रूम पूरा या एक हाउस पूरा बनता है. नेक्स्ट कमिंग अप टू चिल्ड्रन, दैट इज सेल नंबर. एक ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स रहते हैं, कितने नंबर ऑफ मीन्स वी आर एन ऑर्गेनिज्म, हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स डू वी हैव. Children, an organism can be unicellular or it can be multicellular. एक organism unicellular भी हो सकता है और वो multicellular भी हो सकता है. Now children, unicellular organisms are the organism which are made up of only single cell. एक सेल का बना हुआ जब organism होता है तब उसको हम unicellular organism कहते हैं. One cell means unicellular organism. Okay, but this organism has the capacity of doing everything. जैसे हम एक multicellular organism होके we can eat food, we can capture food, we can digest, we can respire, we can grow, we can reproduce. Same way एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी सब कुछ करने की कैपेसिटी रखता है. As it is children, you can see here amoeba, it can capture food, it can digest, it can respire, it can excrete, it can grow and it can even reproduce. वो grow, reproduce, respire means जो living organism होने के लिए जो जो चीज करना जरूरी होता है, एक अमीबा unicellular organism होते हुए भी it can perform all the activities. भले ही वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चिल्ड्रन, अमीबा पैरामीशियम. चिल्ड्रन यू कैन सी इट ऑन योर screen. Two pictures are there children, they are amoeba and paramecium. This also you have to draw it also in your copy whenever your teacher gives you. See children, amoeba, paramecium, you can see two figures on the screen. They are the unicellular organism and they have the capability or capacity to do everything as it is needed by a living organism. एक living organism को जो जो काम करना जरूरी होता है, यूनिसेलुलर एक सेल का बना हुआ होने के बाद भी वो ऑर्गेनिज्म सारे काम को कर सकता है. Children, see, a single cell organism can perform all the necessary functions that a multicellular organism can. एक unicellular organism वो सारे काम कर सकता है जो एक multicellular organism कर सकता है. For example, amoeba example देके these are the all activities an amoeba can perform. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस एक ऑर्गेनिज्म से के एक से जब ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं तो दे आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अ प्लांट इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एन एनिमल इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड वी चिल्ड्रन वी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स ओनली. हम ह्यूमन बींग्स एक अलग कैटेगरी नहीं है, हम भी एनिमल्स के कैटेगरी में ही काउंट होते हैं. Now children, an organism made up of more than one cell are called multicellular organism. Multi matlab hi by word itself it is clear. More than one cells it makes a multicellular organism. Plant cell, animal cell, anything can come under human, plant, animal. Everything can be एक human हो चाहे plant हो चाहे animal हो, सब जो है वो multicellular organisms में आते हैं. Now children, group of specialized cell performing different functions are called tissues. हमने देखा सेल अगर एक था, एक सेल का ऑर्गेनिज्म बना तो यूनिसेलुलर, अगर एक से ज्यादा सेल का ऑर्गेनिज्म बना तो मल्टीसेलुलर. अब चिल्ड्रन हम जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारा all the cells have the capacity of performing different functions. एक तरह के see children in the class what happens, ऐसा होता है ना, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है, बदमाश पढ़ने वाले बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है, एंड सीधे साधे बच्चों का एक ग्रुप बन जाता है. सेम वे चिल्ड्रन वी हैव इट ओवर हियर ऑल्सो. यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होता है. सेल्स जो रिस्पिरेशन, सेल्स जो एक तरह के रिस्पिरेशन का काम करने के लिए कैपेबल हैं, वो सारे लंग्स बनाने के काम आएंगे. ऐसे सेल्स जो कि खूब मेहनत कर सकते हैं वो हमारे मसल्स बनाने के काम आएंगे. कुछ ऐसे सेल्स जो कि दूसरे तरह का वर्क कर सकते हैं. आई मीन टू से ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल मीन्स एक तरह के काम करने वाले सेल्स पास आते हैं और वो एक ऑर्गन बनाते हैं. जब मेनी सेल्स कम टुगेदर ऑफ सिमिलर टाइप दे फॉर्म अ टिश्यू. एक ही तरह के काम करने वाले सेल्स ही पास आएंगे. एक बदमाश बच्चे के साथ एक सीधा साधा वाला बच्चा कितने दिन रह पाएगा? ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा ना. वो नेचुरली आफ्टर सम टाइम ही विल लीव दैट चाइल्ड ऑफ बिकॉज ही कांट सर्वाइव. सेम वे चिल्ड्रन
with the cells also, एक तरह का काम करने वाले जो cells हैं वो आपस में पास आ जाते हैं, and many cells when they come together we call them as tissue. हम उनको अब cells नहीं बोल के tissues का नाम देते हैं. नाउ चिल्ड्रन, जब बहुत सारे टिश्यू पास आएंगे तो पूरा एक ऑर्गन बनेगा. जैसे हमारा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, हमारा पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट. सेम वे चिल्ड्रन, व्हेन मेनी टिश्यूज कम टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन. व्हेन मेनी ऑर्गन्स कम टुगेदर वन ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड. ऑर्गन सिस्टम मीन्स आपका पूरा शरीर एक ऑर्गन सिस्टम है. बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ मिलके एक पूरा सिस्टम, एक पूरा बॉडी बनाते हैं तो वी कॉल इट एज ऑर्गन सिस्टम. सो चिल्ड्रन, सेल बहुत सारे सेल मिले तो क्या बना? टिश्यू बना. बहुत सारे टिश्यू मिले तो क्या बना? ऑर्गन बना. एंड व्हेन मेनी ऑर्गन्स केम टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, दैट इज वी एन ऑर्गेनिज्म. हम एक पूरे ऑर्गेनिज्म है, किसी एक ऑर्गन से हम नहीं बने हैं. देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी which we are going to study in this class also some of the things, and in the further we'll study in the later classes. Now children, cell हमने क्या पढ़ा? नंबर के हिसाब से हमने दो तरह के होते हैं. वी सॉ यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. नेक्स्ट इज सेल साइज. सेल के साइजेस कैसे होते हैं चिल्ड्रन? सेल कैन बी वेरी माइन्यूट एंड वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी वेरी लार्ज ऑल्सो. एज आई टोल्ड यू, एग जो होता है यू कैन सी इट इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, बट यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ योर नेकेड आइज. आप नेकेड आइज से भी वो सेल को आप देख सकते हो. स्मॉलेस्ट सेल कैन रेंज फ्रॉम 0.1 to 0.5 μm. and example is bacteria, and the cell can be even the largest, that is the ostrich का एक सबसे largest cell. अंडा, कोई भी अंडा हो, that is a unicellular, but ostrich का अंडों में भी जो ostrich का egg है that is the largest in size. That's why largest में हम ostrich egg we write, and that is ranging from 170 to 130 mm. Okay, so this is the variation of cell साइज. सेल इतना छोटा भी हो सकता है और इट कैन बी विजिबल बाय द नेकेड आइज ऑल्सो. ये जो बैक्टीरिया है आप नेकेड आइज से चिल्ड्रन इसको नहीं देख सकते. यू नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर व्यूइंग दिस काइंड ऑफ स्मॉल सेल्स. ओके, नाउ सेल नंबर, सेल साइज. थर्ड पार्ट इज सेल शेप. सेल्स कितने तरह के शेप के होते हैं? शेप के हिसाब से हम कैसे सेल्स को देख सकते हैं या हम समझ सकते हैं चिल्ड्रन? सम सेल्स दैट इज अमीबा. एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी, आई एम गिविंग इट ओवर हियर. अमीबा इज चिल्ड्रन इररेगुलर इन शेप. उसका कोई भी शेप नहीं, आप कैसा भी उसको बना देंगे इट इज राइट. दैट इज अमीबा डजंट हैव एनी शेप. बट चिल्ड्रन, टू मेंटेन द शेप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, सबसे ऊपर क्या होना चाहिए जो कि हमारे बॉडी को एक शेप या फिर हमारे कोई भी सेल को एक शेप देगा? वी नीड अ मेम्ब्रेन टू गिव शेप टू एनी सेल और एनी ऑफ द थिंग. हम किसी भी चीज को शेप देने के लिए उसका एक बाउंड्री होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज मेम्ब्रेन. सेल का मेम्ब्रेन होना चाहिए. मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल. किसी भी सेल को शेप कौन देता है? उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको शेप देता है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन अमीबा. इट इज इररेगुलर शेप. उसका कोई शेप नहीं होता है. हैफेजेटली वॉट एवर यू मेक दैट विल बी राइट. एंड amoeba doesn't have any shape. It keeps on changing its shape. जैसे वो पानी में मूव करता है तो कभी ऐसे मूव होगा, कभी ऐसे 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 करके चल के it goes forward. Children, what does amoeba do? How does amoeba work? See children, it has like this kind of two arms. जैसे ही वो फूड को देखता है, कहीं भी उसको लग रहा है कि यहाँ खाना आ रहा है, what it does children, it takes out two of its arms like this, which is known as pseudopodia. See children, these two arms are known as pseudopodia. वो क्या करेगा? जैसे ही उसने फूड को देखा, फूड को वहाँ वो अपने अंदर ले लेगा और ये वाला वॉल जो है अब डिसॉल्व हो जाएगा, एंड दिस वे इट विल टेक द फूड इनसाइड. इन दिस वे अमीबा विल कैप्चर द फूड इनसाइड. और अंदर अब वो सब कुछ कर सकता है. रिस्पिरेशन, वो भी अपने मेम्ब्रेन के द्वारा रिस्पिरेशन करेगा. पानी बाहर आएगा, अंदर आएगा. गैसियस एक्सचेंज है, दैट विल ऑल्सो बी डन बाय इट्स मेम्ब्रेन ओनली. ये यूनिसेलुलर है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, बट इट कैन डू एवरीथिंग टुगेदर. एंड इट शेप इज ऑल्सो इररेगुलर. इट डज नॉट कीप एनी ऑफ द रेगुलर शेप. ठीक है चिल्ड्रन, नाउ सेल्स कैन बी ओवल, सेल्स
गोल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, वो ओवल हो सकते हैं, वो स्पिंडल शेप के हो सकते हैं चिल्ड्रन। सेल्स कैन बी इलोंगेटेड, वो लंबे लंबे हो सकते हैं। दे कैन बी, जैसे हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, कुछ मसल सेल्स हमारे ब्रांच्ड होते हैं। एंड नर्व सेल चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू इट इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी, वो भी बिल्कुल लंबा सा होता है विथ मेनी काइंड ऑफ टेंटिकल्स कमिंग आउट। Okay, so shape of the cell can be varying from many children, shape can vary from cell to cell. एक सेल से दूसरे सेल को हम जैसे ही देख पाते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम सेल को बिल्कुल अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये कहाँ का सेल है। एज चिल्ड्रन we all are, many of our ladies are there, but ऐसा होता है क्या कि हम किसी को भी किसी का भी नाम दे देते हैं? No, all have their own special features. सबके पास अपने अपने, दुनिया में इतने लोग हैं फिर भी हमको सारे लोग नाम से याद रहते हैं। क्यों चिल्ड्रन? क्योंकि सब वही मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, सबके पास 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, सेम थिंग्स आर देयर, बट देन टू वी कैन डिफरेंशिएट देम। सेम वे चिल्ड्रन, सेल ऑल्सो, सेल का शेप देख के हम बिल्कुल सेल को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अनियन पील का ये सेल है, दिस इज अ सेल, दिस इज अ टिश्यू। एक टिश्यू लंबा है, कोई टिश्यू जो है वो पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स है। सो चिल्ड्रन, सेल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड और कैन बी सीन बाय द, इट कैन बी नेम्ड बाय द देयर शेप ऑल्सो, उसको हम उसके शेप से भी पहचान सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल, एक सेल हमने देखा इतने समय से, वो नंबर, साइज एंड उसका नंबर्स कितना होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, साइज कैसे होना चाहिए। नाउ वी विल सी हाउ डज द सेल लुक लाइक एंड सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। Now children, the basic components of the cell is 3 things से एक सेल मिलके बना होता है। The outer covering is known as cell wall और cell membrane. Next is जो उसमें पूरा एक watery jelly like substance होता है, उसको कहते हैं cytoplasm. And in the center, in this children, onion peel also, you could have seen one small black dots were there in each and every cell, and that black dot was nothing but nucleus. Okay, so the components of the cell are cell plasma, cell wall और cell membrane और plasma membrane, whatever you can call it as. वो plants और animals में थोड़ा सा I'll tell you what are the differences. Next is cytoplasm and nucleus. See children, this is basically how a cell look like. ये basically एक cell इस तरह से दिखता है। फर्स्ट उसका जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट मेम्ब्रेन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर इसका कवरिंग है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमनली हर एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक सेल पूरा कवर्ड रहता है, वो उसको शेप देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है? वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है, बाजू वाले सराउंडिंग थिंग्स से एक सेल को अलग करता है, कोई भी सेल को उसके सराउंडिंग थिंग्स से अलग करता है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का होना का मतलब होता है चिल्ड्रन, इट ओनली अलाउज द थिंग्स विच आर नीडेड बाय द सेल, इट ओनली अलाउज दोज थिंग्स टू कम इनसाइड, एंड द थिंग्स विच आर नॉट नीडेड बाय द सेल, इट लेट्स देम गो आउट। जो चीज़ उसको नहीं चाहिए वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है, और जो चीज़ें उसको चाहिए वो सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही वो अंदर की तरफ आता है। दिस इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल। सो दीज आर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है? इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग medium, it separates one cell from the another, it is selectively permeable, that is what only it allows inward and outward movement, but सब कुछ वो अंदर नहीं आने देता है जो उसको चाहिए। it allows only selective, selective का मतलब होता है कि only which is needed it comes in and which is not needed it goes out of the cell. Next children, ये cell wall जो होता है it is only found in the plant cell. plant cell में ही बाहर cell wall रहता है। एनिमल सेल में बाहर सेल वॉल हमको दिखाई नहीं देता है, इट इज नॉट प्रेजेंट, ओनली सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। चिल्ड्रन, सेल वॉल एक थिक आउटर कवरिंग होता है विच गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट। सी चिल्ड्रन, प्लांट इज आउटसाइड डे नाइट इन ऑल द सीजन्स, इन स्टॉर्म, इन रेन, in scorching heat, in even snowfall it is, the plants are staying outside, so they need some special kind of protection, and वो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल, प्लांट सेल्स आर हैविंग सेल वॉल विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द आउटर
एनवायरमेंट, बाहर के जो एनवायरमेंट है बाहर, वो उसको रेजिस्ट कर पाए या नहीं कर पाए, उसको रेजिस्ट करवाने के लिए बाहर उसका सेल वॉल पाया जाता है. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन दिस dotted part you can see, this is the cytoplasm. Cytoplasm is nothing children but it is just a jelly like substance. एक जेली जैसा एक लिक्विडी स्ट्रक्चर रहता है जो हर एक सेल आप जैसे ही खोलो, कोई भी लिविंग चीज है आप थोड़ा सा उसको ऐसे मसल के देखिए, आपको उसमें से वाटरी लगेगा, हाथ में पानी पानी फील होगा. व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? दैट इज नथिंग बट अ साइटोप्लाज्म. दिस साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस और सेल ऑर्गेनल्स इसमें एम्बेडेड रहते हैं. ना व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स चिल्ड्रन? एक सेल सारा काम करने के केपेबल है. इट कैन डू डाइजेशन. हम आगे जाके पढ़ेंगे सेल्स में कौन सा ऑर्गेनल है, हम 9th में विल स्टडी दिस कि देयर आर मेनी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमारे एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सेल को सारे काम करने में हेल्प करता है. सो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड या धसे हुए रहते हैं. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज a spherical substance which is present in all the cells. सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, either plant cell or animal cell. they are located mainly, ज़्यादातर वो सेंटर में लोकेटेड होता है, बट इट इज नॉट ऑलवेज सो. प्लांट सेल्स में वो कॉर्नर में लोकेट होते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज वेक्यूल्स. वेक्यूल्स कुछ नहीं चिल्ड्रन, ये इनमें एयर स्पेसेस होते हैं. एक्चुअली दे आर नॉट एयर स्पेसेस, दे हैव सैप इन इट. ओके, दे आर नोन एज वेक्यूल्स. इन वेक्यूल्स प्लांट सेल में ये छोटे छोटे और स्कैटर्ड दिखाई देते हैं. प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये वेक्यूल्स एनिमल सेल में छोटे छोटे पूरे सेल में ऐसे स्कैटर्ड रहेंगे. दिस इज एनिमल सेल में. बट चिल्ड्रन इन प्लांट सेल दिस वेक्यूल विल बी इन लार्ज इन साइज. और आपको जैसे ही एक प्लांट सेल आपको दिखाई देगा, सी चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ यू इन द स्क्रीन यू कैन सी वन प्लांट सेल एज वेल एज वन एनिमल सेल. सी चिल्ड्रन यू कैन सी इन प्लांट सेल एक बड़ा सा खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज वेक्यूल. वो यही वेक्यूल होता है. ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है चिल्ड्रन. एज वी सी अ प्लांट सेल और अ एनिमल सेल वी कैन डिफरेंशिएट ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है, बस वो वेक्यूल्स को देख के. एक बड़ा सा खाली जगह आपको दिखाई देगा, that means it is an plant cell. And if these vacuoles are scattered in the cytoplasm, that means they are nothing but animal cell. Okay, this was the small difference which I told you about plant cell and animal cell. Now children, we will study about this न्यूक्लियस. अब हम जो अंदर का न्यूक्लियस है उसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट स्टडी करते हैं. Now children, nucleus is known as the control center of the cell. एक सेंटर के जो सबसे बीच में जो काला रंग का गोल दिखाई देता है, दैट इज न्यूक्लियस. ओके, नाउ न्यूक्लियस इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द फुल सेल. हमारा कंट्रोल सेंटर होता है जैसे ब्रेन, वैसे एक सेल का कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है व्हाट टू डू एंड व्हेन टू नॉट. नाउ चिल्ड्रन, सेम वे जैसे सेल्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं वैसे न्यूक्लियस में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. यू कैन सी इट ओवर हियर चिल्ड्रन. सी न्यूक्लियस के जो आउटर कवरिंग, जैसे हमने सेल का सेल मेम्ब्रेन बोला था, सेम वे न्यूक्लियस का हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. सी चिल्ड्रन, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं. दे आर नोन एज न्यूक्लियर पोर. जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, सेलेक्टिवली परमिएबल था, वो सिर्फ चीज़ें जो चाहिए उनको आने या जाने दे, नहीं चाहिए उसको जाने देता था. सेम वे इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद दिस काइंड ऑफ पोर्स फॉर द सब्सटेंस टू कम इन एंड गो आउट ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर और अंदर आने जाने के लिए वो इस तरह से पोर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड. जैसे सेल में साइटोप्लाज्म था वैसे ही न्यूक्लियस में अंदर जो एक जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. चिल्ड्रन, वी कॉल इट एज न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे सेल में बीच में एक न्यूक्लियस था वैसे न्यूक्लियस के भी सेंटर में एक काला सा गोल, कैन यू सी इट ओवर हियर चिल्ड्रन? दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस. इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं. एंड सी चिल्ड्रन, स्मॉल लाइक दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज सीन इन दिस nucleus. In this nucleus, small thread-like structure is seen. They are actually known as chromatin threads. इनको chromatin threads बोलते हैं.
एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जब सेल को डिवाइड करना होता है तब ये क्रोमैटिन थ्रेड्स क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेते हैं. दैट्स व्हाई चिल्ड्रन आई हैव रिटन इट एज क्रोमोसोम्स. और ये क्रोमोसोम्स क्या करता है चिल्ड्रन, उसके अंदर छोटे छोटे जीन्स होते हैं. व्हाट आर दीज जीन्स चिल्ड्रन? दीज जीन्स आर द हेरिडिटी, दे ट्रांसफर द हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. What is this hereditary characters children? We resemble our parents. मैं अपने मम्मी, अपने पापा या किसी के जैसे दिखते हैं, आप किसी के जैसे दिखते हैं, दादा दादी, नाना नानी. So why it is so children? Because the genes which is coming, which is inherited, साइंस में टर्म्स भी यूज, दैट इज इनहेरिट होना मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में जो पास होता है जीन्स, दैट इज नोन एज, वो क्या पास होता है, जीन्स ही उन कैरेक्टर्स को पास कराता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. सो चिल्ड्रन, दिस क्रोमैटिन थ्रेड्स आर एक्चुअली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं एंड दे हैव जीन्स इन देम व्हिच डू द ट्रांसफरिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. सी चिल्ड्रन, this was the nucleus के parts. ये nucleus के parts थे. Nucleus is also known as the control center of the cell. This is known as the control center of the cell. इसलिए nucleus के भी अंदर cell के भी अंदर nucleus, इसलिए nucleus के भी सारे parts को elaborate form में आपको पढ़ाया गया. Now children, we have two kinds of cell. हम जो cells होते हैं दो तरह के होते हैं. कोई advanced एकदम से नहीं हो जाता है. एज इट इज चिल्ड्रन, वी आर ऑलवेज प्रिमिटिव. पहले हम बंदर थे, एज इट इज सेड, वी वर मंकी प्रीवियसली एंड स्लोली एंड सर्टनली वी केम इनटू अ ह्यूमन बीइंग. But same way with this cells also children, cells are of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now children, what is prokaryotes? Pro means children primitive and eu means true. ये एक्चुअल ट्रू सेल्स है, दैट इज द यूकैरियोटिक सेल्स विच वी आर हैविंग एट प्रेजेंट, ऑल आर एडवांस सेल. डिफरेंस उनमें ये होता है चिल्ड्रन, मेन डिफरेंस आप याद रखिए, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना, सेल के अंदर एकदम अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमैटिन थ्रेड्स है, न्यूक्लियोलस है, सो मेनी थिंग्स आर देयर इनसाइड द न्यूक्लियस आल्सो चिल्ड्रन. बट इन दिस प्रोकैरियोटिक सेल्स यू कांट सी ऑल दिस. बस सिंपल एक इस तरीके से सेल होगा और इस तरह से कुछ बस न्यूक्लियर मटेरियल इस तरह से उसमें रहेगा. दिस काइंड ऑफ ऐसा इस तरह से कुछ सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल दिखाई देता है. बट यू कांट सी एनी लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जैसे कोई डिफ्रेंसिएशन होके कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनमें नहीं पाया जाता है. This is the main difference between the eukaryotes and the prokaryotes children. Eukaryotic cell, bacteria, blue-green algae, आज भी कुछ ऐसे cells पाए जाते हैं जो कि prokaryotic cell ही हैं. Rest all the cells are eukaryotic cells. They have like this. All the cells are having like this well-defined nucleus. सारे के पास well-defined nuclear material और nucleus पाया जाता है. Now children, next is हमारे पास दो तरह के cells होते हैं, plant cell and animal cell. I told you previous also when I was explaining cell. See children, two cells are there in front of you on the screen. देखिए children, once take the screenshot of this board of mine so that whatever I have explained it will come to you nicely. Now children, two types of cell, you can see it on the screen in front of you, it is there. One is plant cell and another one is the animal cell. Children, main difference between plant cell and animal cell. First thing is, plant cell is having cell wall and animal cell is not provided with the cell wall. इस तरह का cell के ऊपर एक cell wall plant cell में है, you can see, and animal cell is not having cell wall. Okay, next is children, plant cell. आप देख सकते हैं एक बड़ा सा खाली space है. Plant cell has large vacuole, central vacuole, large central vacuole is present in the plant cell, whereas in animal cell like the small vacuoles are scattered in the cytoplasm. In plant cell children, plastids are present. Now what are these plastids children? Plants में एक green color जो provided होता है. Plants हम तो green color के नहीं होते हैं. That's why animals doesn't have this plastid. It is only present in the plant cell children. They have plastids in it. That is, they have chloroplast or chromoplast उनमें पाए जाते हैं, which gives different color to the plants. कोई crotons red होते हैं. Mainly plants are green in color because they have chlorophyll or chromoplast in them.
Now children, cell wall, cell membrane, vacuoles. Plant cell में centrally the nucleus is located at the corner. एक आप देखेंगे प्लांट सेल में बड़ा सा सेंट्रल में वेक्यूल है और न्यूक्लियस एकदम कॉर्नर में चला गया है. whereas in animal cell nucleus is located centrally, that is nucleus बिल्कुल central में located है. This was the difference between the plant cell, common difference between a plant cell and an animal cell. By just viewing a plant cell or an animal cell, you can tell कि this is a plant cell or this is an animal cell. पहला तो ये सेल वॉल, इस तरह का जो भी एक प्लांट सेल होगा उसके चारों तरफ आपको इस तरह से और एक सेल वॉल दिखाई देगा, which is not there in the animal cell, which is not there in the animal cell. नेक्स्ट आपको इस तरह से बड़ा सा वेक्यूल दिखाई देगा, विच इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर लाइक दिस इन द प्लांट सेल. सो प्लांट सेल इस तरीके का आपको दिखाई देगा एंड एनिमल सेल इन दिस वे. यू विल बी एबल टू सी इट.